अंदर। जी जी हम सच्चाई पे खड़े रहेंगे वर्मा साहब, सच्चाई पे खड़े रहेंगे और आप देखेंगे आप झूठे हैं कश्मीर के अंदर, आपने वादे तोड़े, आपने। An election was called, and then everybody was shocked because there was a huge turnout in the elections. And leaders of the resistance were arrested. Nobody asked, what does it mean to have elections when there's 700,000 soldiers supervising every 5 meters all the time, all year round? They don't have to push people on the end of a bayonet to the voting booth, you know. Nobody talked about the fact that there was a lockdown in every constituency. Nobody wondered. साहब मेरी किताब जरूर पढ़िएगा, उसमें 11 साल जो हमने कहा है कम से कम 80% सच निकला है। वर्मा साहब ज्योतिषी होंगे, लेकिन मैं इदराक की बुनियाद पे करता हूँ, मैं एक सिपाही हूँ और मैं जानता हूँ कि ये भी हालात ऐसे नहीं रहेंगे। Progressing democracy or transporting freedom to the world and so forth. Afghanistan is a perfect example. NATO has laid waste to that country for a decade. Every aspect of the stated mission has failed. और ये भी कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से रुखसत होगा तो भारत के अज़ाइम भी शिकस्त से दो चार होंगे। Think that applies to the people that have been living under the boot of NATO for so long. Okay. The Afghans, I get Afghan refugees arriving in my constituency who are desperate to get out of Afghanistan and try and survive. This is a defeat for NATO. They've spent billions of pounds, lost thousands of NATO troops' lives, and above all that, large numbers of Afghan people have died. The country is unstable, corrupt, and riddled with drug corruption and drug production, and this is a disaster for NATO. And I think the sooner the troops come out, the better. And the Afghan people are going to have to decide their own future in some way. Whatever. आप जब वहाँ पे एक अफगानिस्तान पे हमला हुआ तो भारत ने उसको कंडेम क्यों ना किया? क्यों नहीं कंडेम किया? एक गलत काम हुआ था, उसको कंडेम करना चाहिए था। नहीं, क्योंकि हमने कंडेम ही नहीं किया। भारत वर्मा का ये भी मानना था कि वो अफगानिस्तान में तरक्की के मंसूबों पर सरमायाकारी के साथ साथ किसी सूरत तालिबान जैसी किसी ताकत को वहां बरसरे इक़्तिदार आने नहीं देंगे। और यही वो नुक्ता है जो बतौर रियासत शायद पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीश का बायस है कि अगर सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में चढ़ाई उसको तो हम आपसे क्यों कहेंगे कि आप हमें बचा लीजिए, और पाकिस्तानी बचा भारत को बचाने के लिए। Families claimed they did not get any help from the Indian Navy. A victim's relative told NDTV that they could not get through helpline numbers of the Navy and have been looking at the Pakistani activist Ansar Birni for help. Well, indications are she was allegedly beaten up by her husband, an Infosys employee in the US, and thrown out of a moving car there. She was rescued by a Pakistani doctor and sent home. Sandhya Ravishankar. इंसानियत का परिचय दिया है वो पाकिस्तानी है कि अगर फर्ज करें कि मेजॉरिटी जो उसी ने फैसला करना है, तो दुनिया में और बेशुमार ऐसी ताकतें हैं कि जो तादाद में आपसे ज्यादा हैं। इसका मतलब ये होगा कि वो जो कानून वो बना लेंगी या रूल वो बना लेंगी वो दुनिया का रूल होगा। पाकिस्तान में तो जंगल राज के सिवा कुछ है ही नहीं। जो जमहूरियत हो रही थी, जो गुजरात में डेमोक्रेसी थी, जो गुजरात में मुसलमानों को जिंदा जलाया गया वो जमहूरियत थी, जो सिखों को जलाया गया जमहूरियत है, जो ईसाइयों को जलाया जा रहा है जमहूरियत है। इंडिया में देख ली इंडिया की जमहूरियत हमने, ऐसी जमहूरियत से बेहतर है कि वही वक्त वापस ले आए जब मुसलमान हुकूमत करते थे इंडिया पे और अमन से रहते थे सब मिलकर। But then there's this other thing called the RSS, Hindu extreme nationalists, racists, Hindu superiority. The ones that killed Gandhi because he wouldn't go to war with Muslims. Now, the woman was humiliated as she was taken in a cycle rickshaw as a bunch of men followed, a shameful spectacle right on the streets of Patna. Attacks were unleashed on Christians by radical groups in India. To the world of where do you get Hindu terrorists? Again, this BJP is the governing party. They'll probably be back in power soon. आप महसूस ही करते कि इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इतनी मजबूत है कि वो पूरी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको थ्रेट भी कर रही हैं और वहाँ पे कानून का मजाक भी उड़ा रही हैं। इंडिया एक मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसी है
एशिया में जहाँ चारों तरफ डिक्टेटरशिप्स हैं या कम्युनिस्ट हैं या done through Hindu patsies, not Islamic, but Hindu patsies. This is a big thing. There's a whole world of Hindu terrorism that they want to deny. ये भी है कि जब आप आरएसएस जो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा पा रहे, बजरंग दल जो है उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहे, शिवसेना जो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत ज्यादा नजर आ रही है. Persecution such as this is not uncommon in India, and these sorts of have spread into rural pockets of 20 of India's 28 states. Prime Minister Manmohan Singh says the Maoists are India's gravest internal security threat. एक बात सुनिए, यहाँ इलेक्शंस होते हैं, लोग वोट करने जाते हैं, तादाद बढ़ रही है. Openly declare war against the Adivasis. You have a paramilitary police which is being trained to be an army. So the police are turning into the army is turning into the police. But to push through this growth rate, you know, you have basically this whole country is turning into a police state. इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया जो है बड़ी डेमोक्रेसी है, बड़ा मुल्क है, बड़े पैसे हैं, बड़ी उसके पास उसके रिजर्व्स हैं, ये सारी चीजें मैं समझता हूं हम तस्लीम कर लेते हैं. लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में आज तक कोई ट्रेन नहीं चलाएगी, पाकिस्तान में किसी शहर को आग नहीं लगाएगी, पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी बिल्कुल महफूज है. एक छोटा मुल्क जिस पे आप ब्लेम कर रहे हैं उसके अंदर इस किस्म का कोई वाकया आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ. उसके अंदर सिर्फ हम खुद शामिल हैं क्या इंडिया ने कोई दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर नहीं की? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा, जो बरहमदाद बुक्ती काबुल और दिल्ली के अंदर बैठ के ऑपरेशन प्लान में जो लिस्टें हमें दी हैं इस वक्त पाकिस्तान को, उसके अंदर आधे दर्जन के करीब तो सिख हैं. तो सिखों को क्यों वापस मांग रहे हैं आप? क्यों किन सिखों को तलाश करते फिर रहे हैं? उसमें एक तो सिख है नहीं, और फिर सिखों से क्यों परेशान है आप? क्यों सिख अलग होना चाहते हैं आपकी फेडरेशन से? क्यों नक्सलाइट अलग होना चाहते हैं इंडियन फेडरेशन के साथ? जरा इन सवालों का जवाब भी दे दी. मैं सिर्फ दो चीजें कहना चाहता हूं. ठीक, एक चीज है कि पाकिस्तान आज जो उन्होंने पैदावार, आज वो उनको डसने को तैयार हो गया. दूसरी चीज ये है कि शुरू में जैसे मैंने कहा था कि आपके और मेरे परसेप्शन में कोई तालमेल हो नहीं सकता. मैं एक डेमोक्रेसी हूं. ये इस रोशनी का ज्यादा हकदार इंडिया है. कम से कम वहां पे तो आप तशद्दुद को रोक लें, दहशतगर्दी को रोक लें, ट्रेनों को आग लगने से रोक लें. अपनी गुफ्तगू के दौरान 12 हमीद गुल जैसे लोग की इस Okay, so this is Karkare. Now, he had been investigating the Malagan massacre. The Malagan massacre, 2006, 37 dead. And he had been saying, look, the BJP candidate, basically the shadow prime minister of the BJP, the Hindu